Hello student and welcome to Bharat Vikrama School and Junior Colleges. This is your geography lecture, population part 2. Lesson is revised and I am your management miss taking your lecture for geography. So today we are going to study about population. Earlier we have studied population in part 1 but now we are studying about population in part 2. The points we have remembered or we have studied in last lecture are that population is considered as a human resource. Its physical and intellectual characteristics affect the development of any region or country. Economic activities develop only with reference to human resources. In the absence of proper use of human resources, other resources are not developed effectively. While studying population composition, we study age structure, sex literacy education, and occupational structure. Then we studied about the population composition, and first we studied the age structure. That every country has a number of infant, children, teenager, young adult, and old people, and these numbers are or group of population is varies from country to country. And we studied about age structure on population can be studied with the help of population pyramid. Another thing we have studied about types of population pyramid, which are expansive, constructive, and stationary. Then we studied about sex ratio. The ratio between number of men and women in population is called sex ratio. Sex ratio is equal to total female population upon total male population into 1000. Average sex ratio of the world population is 990 female per 1000 males. While we study the ratio of working and non-working population of India in this paragraph, in this graph, and then we study the demographic dividend in large economy. What is the dividend demographic economic dividend? We studied about it. Then how the non-working and working population together make the economy. Then we studied about literacy and education, and today we are going to study about occupational structure. The working population, example women, men of the age group 15 to 59, take part in various primary, secondary, tertiary एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़. इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. फ़िलहाल हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉपुलेशन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन में पार्टिसिपेट करती है, पार्ट करती है. द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो है इंगेज होती है इन सेक्टर्स में. ये एक अच्छा इंडिकेटर है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसी भी नेशन के लिए. This is because only a developed economy with industries and infrastructure can accommodate more workers in the secondary, tertiary and quaternary sector. अगर इकोनॉमी एग्रेरियन है तो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो है ज़्यादा करके इंगेज होंगे इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में. अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी and quaternary economic activities. Primary activities are mainly depend on agriculture, while the secondary activities developed further the products or the goods of primary activities. Tertiary activities helped it to sell in the market or it supplies it in the another regions. And quaternary is an intellectual services. Now we will study urban and rural composition. That urban and rural composition on the basis of residence पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है रूरल और अर्बन पार्ट में. लाइफ स्टाइल जो होता है पीपल का लिविंग रूरल एंड अर्बन एरियाज में जो है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो कि उनके लिवलीहुड और सोशल कंडीशन पे डिपेंड करता है. एज, सेक्स कंपोजिशन और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेंसिटी और लेवल ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट जो है ये डिफरेंट रूरल और अर्बन एरियाज में अलग अलग होते हैं. जो एरिया बहुत लार्ज होते हैं प्रोपोर्शन में, जिसमें जो पॉपुलेशन इंगेज होती है प्राइमरी ऑक्यूपेशन में, ऐसे एरियाज़ को कंसिडर किया जाता है एज ए रूरल. और एरियाज़ जो लार्ज प्रोपोर्शन में होते हैं और यहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज होती है अदर देन प्राइमरी ऑक्यूपेशन में, तो ऐसे एरिया को एज ए कंसिडर किया जाता है एज अ अर्बन पॉपुलेशन.
नाउ विल स्टडी द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 2.3 आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 पर। इसमें ईयर दिया हुआ है 1901 to 2011 और इसमें आपको ए प्राइमरी सेक्टर 1+2+3+4 दिया हुआ है। कल्टीवेटर, लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर लेबर्स, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एक्सेट्रा दी हुई है। माइनिंग और क्वारिंग दी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। टेरिटोरियल सेक्टर में ट्रेड और कॉमर्स दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन और अदर सर्विसेज है। यहाँ पर टोटल नंबर दिए हुए हैं कि कौन कौन से जो है इकोनॉमी यहाँ पर कितनी परसेंट है और किस तरीके से ये काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज द टेबल शो। द टेबल शोज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। विच सेक्टर हैज़ द हाइस्ट ऑक्यूपेशन इन विच ईयर। तो द प्राइमरी सेक्टर हैज़ द हाइस्ट occupation. It is 72.7% in 1951. As you can see, it is 72.7 in 1951. Another question is which sector has the lowest occupation in which year. तो secondary sector यहाँ पर है has the lowest occupation. It is 10% in year 1951. अब उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है इन विच सेक्टर इज द वर्किंग पॉपुलेशन ऑक्यूपेशन डिक्रीजिंग। कौन से सेक्टर में वर्किंग पॉपुलेशन का जो ऑक्यूपेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इन द प्राइमरी सेक्टर द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज गेटिंग डिक्रीजिंग, यानी ये 71.9 था, 1951 में बढ़ गया। उसके बाद ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहा है एज यू कैन सी इन दिस चार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे 5th क्वेश्चन है इन विच सेक्टर इज़ द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। कौन से सेक्टर में वर्किंग पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है। सो यू कैन सी इजीली इन द सेकेंडरी एंड टर्टियरी द वर्किंग पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है। ड्रॉ सुटेबल डायग्राम फॉर स्टैटिकल इंफॉर्मेशन शोइंग ABC कॉलम्स फ्रॉम 1901 to 2011। तो आपको एक डायग्राम डिवाइडेड हॉरिजॉन्टल परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है जिसमें आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और टर्टियरी ऑक्यूपेशन को इंडेक्स बनाकर इंडिकेट करना है। स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर to 10% का। और उसको स्टडी करने के बाद आप क्या कंक्लूजन लेते हैं। आफ्टर स्टडिंग द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1901 to 2011 हम लोग जो है फॉलोइंग ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं कि देयर इज अ कंटिन्यूस फॉल इन द नंबर ऑफ पर्सन इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ फ्रॉम 71.9% to 48.96%। जैसे आप ये देख सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो है पूरी तरह से ये 1 2 3 4 मिलाकर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पर्सन जो है डिक्रीज़ हो रहे हैं। उसके बाद आपको बोला गया है देयर इज़ 50% फॉल फ्रॉम 50.6 to 26.4 इन द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग एज कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर में जो काम कर रहे हैं फिर 50.6 से डायरेक्ट 76.4% का फॉल आया है। इवन परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज इन लाइव स्टॉक एक्टिविटी, फॉरेस्ट एंड फिशिंग ऑक्यूपेशन हैव गॉन डाउन बाय 4 times। एग्रीकल्चर, लेबर्स और लाइव स्टॉक और माइनिंग जो है इसमें भी जो है 4% का फॉल आया है। अब when it comes to the second and tertiary occupation, number of people working in these activities are increasing continuously। इनका नंबर जो है ऑलमोस्ट डबल होकर बढ़ गया है। और नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन ट्रेड एंड कॉमर्स जो है बढ़ गया है और इनका जो है 4 times राइज हुआ है इन नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में। इन केस ऑफ अदर ऑक्यूपेशन देर इज़ अ स्मॉल राइज। दूसरे ऑक्यूपेशन में भी राइज हुआ है लेकिन वो बहुत थोड़ा है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन को समझने के लिए आपको आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे राम प्रसाद हैज़ grown up in a village in northern India. His uncle who lives in Mumbai has called him to Mumbai and offered him a job. Ritika has completed her post graduation from a famous college in Pune. She landed in a job
in a big company in the USA. It's been 5 years and now she has settled here. सहमत की कंट्री जो है इज अंडरगोइंग अ वार सिचुएशन फॉर सिक्योरिटी रीजन द पीपल हैव टू लीव द कंट्री एंड गो समवेयर एल्स कंपल्सरी. सहमत एंड हर फैमिली हैव टेकन रिफ्यूज इन द नेबरिंग कंट्री. बबन राव जो है एक स्मॉल फार्मर है फ्रॉम द मराठवाड़ा रीजन. ही फेस लॉसेस इन एग्रीकल्चर ड्यू टू ड्राउट. Some other family problems also forced him to sell his land and he shifted to the nearby city. Now he is working and earning a livelihood for himself and his family. रितेश जो पिंपलवाड़ी में रहता है, उसने अपनी कंप्लीट किया है स्कूल एजुकेशन इन हिज विलेज. ही हैज़ गॉन टू नासिक फॉर फर्दर एजुकेशन. लतिका डॉटर ऑफ सुरेखा एंड संदीप फ्रॉम सतारा वेंट टू सोलापुर आफ्टर मैरिज. तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा है कि इन इवेंट्स में आपको जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17-18 पर दिए हुए हैं, आपको इनमें क्या सिमिलरिटीज़ नज़र आती है. तो द सिमिलरिटीज़ इनके अंदर ये है इन दिस इवेंट्स दैट ऑल आर माइग्रेटिंग, यानी ऑल आर माइग्रेटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस बिकॉज ऑफ या तो फिजिकल या तो इकोनॉमिक या तो सोशल या पॉलिटिकल रीजन से. दे हैव लेफ्ट देयर प्लेस और माइग्रेट किया है उन्होंने दूसरे एरिया में, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है. अब दूसरा क्वेश्चन है, इज देयर अ चेंज इन द लोकेशन इन द इवेंट्स. हाँ, देयर इज अ चेंज इन द लोकेशन. चेंज इज बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल रीजन्स. राम प्रसाद और रितिका माइग्रेट किया इन लोगों ने जॉब के लिए. सहमत ने वो माइग्रेट किया बिकॉज वॉर सिचुएशन थी उसके ओरिजिनल प्लेस पे. और बबन राव माइग्रेट किया बिकॉज ड्राउट सिचुएशन उसके ओरिजिनल प्लेस पे. रितेश ने माइग्रेट किया फॉर हायर एजुकेशन, जबकि लतिका ने माइग्रेशन किया क्योंकि उसकी वहाँ पर शादी हो गई थी. तो अब हम पढ़ेंगे माइग्रेशन के कुछ टाइप्स. तो क्या होते हैं माइग्रेशन के बेसिक टाइप्स. बहुत इजी है इसको समझना. दे आर फिजिकल. और क्लासिफिकेशन किया जाता है माइग्रेशन को इंटरनल, इंटरनेशनल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी. और रीजन्स ऑफ माइग्रेशन में आते हैं कुछ फिजिकल, कुछ इकोनॉमिकल, कुछ सोशल और कुछ पॉलिटिकल रीजन. जो फिजिकल रीजन्स है वो है अर्थक्वेक, वोल्केनो, ड्राउट्स, फ्लडिंग. और इकोनॉमिक में जॉब्स, बिजनेस, एम्प्रोवाइज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सोशल रीजन्स में आते हैं सोशल प्रॉब्लम्स, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ या मैरिजेस. और पॉलिटिकल में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और वॉर. तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल और इंटरनेशनल जो माइग्रेशन होता है वो क्या होता है. अगर कोई जो पर्सन है वो कंट्री के अंदर ही माइग्रेट करते हैं, यानी एक सिटी से दूसरी सिटी में. जैसे कोई कोलकाता से बॉम्बे आता है, मुंबई आता है, तो उसे बोला जाएगा कि उसने इंटरनल माइग्रेशन किया है. लेकिन अगर कोई मुंबई से दुबई चला जाता है तो ये एक इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा. और माइग्रेशन की दो टर्म होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म वो होती है जिसमें एक लिमिटेड पीरियड के बाद जो है माइग्रेंट जो होता है वो दोबारा अपने ओरिजिनल प्लेस पर आ जाता है. लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता, काफ़ी लंबे समय के लिए मतलब जो है माइग्रेंट अपने इमिग्रेंट की हुई प्लेस पर रह जाता है, यानी रिसिपेंट रीजन में. वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी, जैसे हमने सहमत का एग्जांपल लिया कि उसकी कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशंस हो गई थी जिसकी वजह से उसको कंपल्सरीली वैकेंट कराया गया, यानी उन्हें अपनी मर्ज़ी से वो जगह नहीं छोड़ी थी, यानी ये नॉन वॉलंटरी था. और वॉलंटरी तब होता है जैसे कोई अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या किसी अच्छी जॉब के लिए या हाई एजुकेशन के लिए अगर बाहर निकलता है, ये दूसरी कंट्री में माइग्रेट करता है, दूसरी सिटी में माइग्रेट करता है, तो उसे वॉलंटरी बोला जाता है. रीजन्स फॉर माइग्रेशन तो आप लोगों ने पढ़ा कि जैसे फिजिकल जो रीजन्स थे अर्थक्वेक, वोल्केनो, ड्राउट्स, फ्लडिंग. जैसे बबन राव की एग्जांपल में हमने देखा कि उसके रीजन में जो था ड्राउट्स की सिचुएशन हो गई थी, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ा. नेचुरल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक. और इकोनॉमिक रीजन में माइग्रेशन इन विच पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स, बिजनेस के लिए या इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए. सोशल में ऑफन पीपल हैव टू माइग्रेट फोर्सफुली, इनको डिसाइड करना पड़ता है. पीपल डिसाइड टू लीव द प्लेस रेदर देन फेस सोशल प्रॉब्लम.
इट में इन्वॉल्व फोर्सिंग पीपल ऑफ अ सर्टेन ग्रुप टू माइग्रेट, यानी किसी जगह पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, एजुकेशन, हेल्थ या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती है तो उन्हें छोड़कर जाना पड़ता है सोशल रीजन्स में। अब पॉलिटिकल रीजन्स क्या होते हैं, समटाइम वॉर लाइक कंडीशंस हो जाती है तो, और या पॉलिटिकल अनरेस्टलेस हो जाता है तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन पॉपुलेशन। तो माइग्रेशन के दो रीज़न होते हैं, एक रीजन वो होता है जो डोनर रीजन होता है और एक रीजन वो होता है जो रिसिपेंट रीजन होता है। तो डोनर रीजन होता है ये अपने इमिग्रेंट्स को बाहर भेजता है, यानी यहाँ से माइग्रेंट जो है वो दूसरे कंट्री में जाते हैं। अब माइग्रेशन फ्रॉम डोनर रीजन कॉजेज टू यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। अब इससे माइग्रेशन से इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन क्या होता है पॉपुलेशन पे, तो डोनर रीजन पे क्या होता है कि यहाँ से तो पॉपुलेशन कम हो जाती है तो यहाँ की जो चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, इनकी जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे हाउसिंग, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, रिक्रिएशन, ये सब जो है इन सब पर जो एक्सपेंडिचर होता है, जो यूटिलाइजेशन होता है, इसका कम हो जाता है। एक्सपेंडिचर जो है इनकर टू डेवलप दिस फैसिलिटीज़ जो है ये वेस्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर जब कोई यूटिलाइज़ करने के लिए नहीं है और इन चीज़ों पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो एज अ वेस्ट काउंट होता है। एज और सेक्स स्ट्रक्चर भी जो है चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने केरला का लास्ट टाइम जब मैंने ये लेक्चर लिया था तब आपको बताया था कि यहाँ का सेक्स रेशियो 1084 फीमेल पर 1000 मेल पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ की वर्किंग एज ग्रुप जो है वो मोस्टली जो है माइग्रेंट कर जाती है दूसरे कंट्रीज़ में। अब रिसिपेंट रीजन पर इसका क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट होता है। रिसिपेंट रीजन एक्सपीरियंस करती है ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन द अवेलेबल फैसिलिटीज़, यानी जो फैसिलिटीज़ है जैसे हाउसिंग फैसिलिटी, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन या रिक्रिएशन, इन पर जो है प्रेशर बन जाता है, क्योंकि जितनी ये फैसिलिटीज़ होती है उससे ज़्यादा उसे यूटिलाइज़ करने वाले होते हैं। ऐसे रीज़न में हाउसिंग वाटर सप्लाई जो है बहुत मुश्किल से मिलता है या इनसफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है और स्लम्स बढ़ जाते हैं। एग्रीकल्चर लैंड को भी जो है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है सच एज हाउसिंग, और लैंड प्राइसेस जो है ट्रिमेंडसली इंक्रीज होने लगते हैं और लैक ऑफ हाउसिंग लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्लम। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ पब्लिक सर्विसेज जो है इससे इंक्रीज़ हो जाती है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी और क्राइम रेट भी बढ़ जाता है, और देयर विल बी अनफेवरेबल सेक्स रेशियो भी होता है। जैसे मुंबई का 832 है और पुणे का 948 पर 1000 मेल है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है हायर हो जाती है, जबकि नॉन वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन जो है बहुत कम हो जाती है। यानी कि जो माइग्रेशन है इसके इम्पैक्ट दोनों ही जगह जो है, जैसे डोनर रीजन और रिसिपेंट रीजन, दोनों ही जगह पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। अब माइग्रेशन के जो रीजन्स होते हैं उनको हम पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर्स कह सकते हैं। पुल फैक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, पीस, एजुकेशन, सिटी लाइफ, जॉब्स, फूड और इम्प्रूवमेंट टू इम्प्रोवाइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह, और पुश फैक्टर्स में फार्मर्स लाइफ, पुअर्टी, वॉर, क्लाइमेटिक डिज़ास्टर एट्सेट्रा आते हैं। तो आज के लिए हम आपका ये लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। आपका पॉपुलेशन पार्ट 2 रिवाइज यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राइमरी ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड, ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज़। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।